Hey! Hang with her sisters, Skipper, Stacy, and Chelsea. What wouldn't you try with those three by your side? All of her best friends. You guys are awesome! Nikki, Daisy, Renee, Teresa, and Ken. An all-new Barbie series. Get to know Barbie like never before. Hey! If you know anything about me, it's that I don't do quit. Hang with her sisters, Skipper, Stacy, and Chelsea. What wouldn't you try with those three by your side? All of her best friends. You guys are awesome! Nikki, Daisy, Renee, Teresa, and Ken. Next time, I'm definitely asking more questions. And the adventures are endless. Amazing! Prepare for takeoff. Road trip! Whoa! Hi. Hello. This spring, It's a magical experience you'll never forget. you can be anything when you dare to dream. To all who believe in the magic of imagination. Barbie Dreamhouse Adventure. जब आती है मुसीबत तुम में से हर एक चुना गया है। तो आपको तैयार होना चाहिए। निंजा गो! आपको सीखना चाहिए निंजा का तरीका। कुछ करके दिखाओ। अगर पहली बार में कामयाबी ना मिले तो बार बार कोशिश करें और चाय का वक्फा लेना मत भूलिए। चीनी का 1 चमचा है या 2? वे ऑफ द निंजा, किंग ऑफ शैडोज और डे ऑफ द डिपार्टेड, 3 इंतहाई लाजवाब लेगो निंजा गो स्पेशल्स सिर्फ पॉप पर। This is the moment you've all been waiting for. Welcome to the world's greatest circus school, the Big Top Academy. Apparently you're a big deal here. So am I. Put one foot in front of the other. Same as skateboarding. Circus school has begun. तो फिर तैयार हो क्या? जादू के मजे क्या अलॉट में खुशामदीद। डांस के लिए आ जाओ चलो मस्ती हो जाए। एडवेंचर के साथ। शानदार। पसंदीदा तरीन दोस्तों के साथ। घर लाने की बात करो ना। हाँ हमने कर दिखाया, ज्यादा वक्त नहीं। मैं इसे करना चाहता हूँ। केयर बेयर्स खुशामदीद केयर अलॉट में सिर्फ पॉप पर। An all-new Barbie series. Get to know Barbie like never before. Hey! Hang with her sisters, Skipper, Stacy, and Chelsea. What wouldn't you try with those three by your side? All of her best friends. You guys are awesome! Nikki, Daisy, Renee, Teresa, and Ken. An all-new Barbie series. Get to know Barbie like never before. Hey! If you know anything about me, it's that I don't do quit. Hang with her sisters, Skipper, Stacy, and Chelsea. What wouldn't you try with those three by your side? All of her best friends. You guys are awesome! Nikki, Daisy, Renee, Teresa, and Ken. Next time, I'm definitely asking more questions. And the adventures are endless. Amazing! Prepare for takeoff. Road trip! Whoa! Hi. Hello. This spring, It's a magical experience you'll never forget. you can be anything when you dare to dream. To all who believe in the magic of imagination. Barbie Dreamhouse Adventure. ओके, तो कौन एल्विन और चिपमंक्स की तरह कूल बनना चाहता है? हम। चले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं। अभी भी नहीं। अब क्या? ये नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज रुकिए। किसी की नकल को ना माने, क्योंकि कोई भी नहीं एल्विन, साइमन और थियोडोर की तरह। ये मैं हूँ। देखिए एल्विन और चिपमंक्स पॉप पर। एक निंजा की असली ताकत जहानत होती है। जो रास्ता हम ढूंढ रहे हैं वो इतना आसान नहीं। इसलिए अक्लमंद बनिए, मजबूत बनिए और बेखौफ। लेकिन कभी मत भूलिए कि आपके लिए अहम क्या है। अपनी माँ को अलविदा नहीं कहोगे? तो क्या फिर जंग के लिए तैयार हैं? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर ली? ये तरीका होता है गोश्त को रोकने का। तो तैयार हो जाएं लेगो निंजा गो मास्टर ऑफ स्पिनजित्सु के लिए सिर्फ पॉप पर। तो क्या आप सबके पास अपनी अपनी बुक्स हैं? हुर्रे! मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्रेंड बुक क्लब बनाना। चलो अब इस किताब की नेचर और थीम डिस्कस करते हैं, ओके? क्या
किसी पोनी का कोई सिग्नल आया है? ओह, ये मेरा है। ओह, ये मेरा है। जब मैं वापस आऊंगी दोबारा शुरू करेंगे। My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? तुम आ गई। ये अच्छा लग रहा है ना? ओह, तुम्हें भी बुलाया है? चलो अच्छा है, किसी दोस्त के साथ जाना अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हें लेने आ रही थी लेकिन कोई और काम याद आ गया। ओह, जब से नक्शे ने हमें बुलाया तब से मैं रिसर्च कर रही हूँ दोस्ती के क्या मसाइल हो सकते हैं और उन्हें किस तरह हल किया जा सकता है। जब से नक्शे ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 मिनट की बात है। जानती हूँ और मैं 100% तैयार रहना चाहती हूँ। आखिर मैं दोस्ती की मलिका जो हूँ। कैसा लगेगा अगर मैं ही दोस्ती के मसाइल हल ना कर पाई? ओह, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ भेजा जा रहा है। अच्छा ये तो बताओ, हमें जाना कहाँ है? द स्मोकी माउंटेन्स। ओह, मैं तो यहाँ कभी नहीं गई पहले। मैं भी नहीं गई, ना ही मुझे ज्यादा मालूमात है, बस यही मिला। देखते हैं इससे क्या पता चलता है। ये स्मोकी माउंटेन के बीच में दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी है और ये 2 जादुई पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। ओह, बहुत खूबसूरत। और जहाँ नेचर होती है वहाँ तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ज्यादा मालूमात नहीं इसलिए नर्वस हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी हमेशा परफेक्ट होती है। यानी कि तुमने तो बहुत तैयारी की है। क्या ये हमारे लिए है? हाँ, मैं सारी चीजें साथ रखती हूँ। बिस्किट, किताबें, कंबल, किताबें। तुमने किताबें 2 बार कहीं। बहुत किताबें हैं ना? तुम्हारे ख्याल में दोस्ती में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हम पता चला लेंगे बहुत जल्दी। ये प्रॉब्लम्स झूठ की वजह से होंगी। हम वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा ना। You're right. क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 दोस्त मिलकर कुछ करने का प्लान बनाए और तीसरे को बुलाना भूल जाए और तीसरे दोस्त को लगे कि उसे जानबूझकर नहीं बुलाया? और जब एक दोस्त दूसरे से पूछे बगैर ही उसका राज किसी और को बता दे? ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि हम पहुंच ही चुके हैं। बस ये मुझे दे दो तुम। बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं जल्दी में हूँ क्योंकि फिक्र हो रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ ये आखिर हो क्या रहा है? जैसा किताब में था वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लग रहा है मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं। अब हम करेंगे क्या आखिर? शायद हम नीचे जाएं तो हमें सब पता चल जाए। रेडी, निशाना, फायर! इससे पहले एक हकीकी निंजा उम्मीद करता है जिसकी उम्मीद ना हो। अपने डर का मुकाबला करो और उस पे काबू पाओ। तुम्हें तो स्क्रूज लगे हैं। अपने दुश्मनों का सामना करो और उन्हें शिकस्त दो। निंजागो का सबसे अजीम फाइटर। तन्हा नहीं, मैं निंजा हूँ अपने साथियों के साथ। और तुमने अपने चेहरे पे मेकअप किया है। लेगो निंजागो मास्टर ऑफ स्पेंजेट्सू पॉपर। My little pony, my little pony. फिक्र ना करो, मुझे बस
मसले की जड़ तलाश करके वहीं से काम शुरू करना होगा। मुझे माफ कीजिएगा, क्या आपको याद है कि पहली बार लड़ाई किसकी वजह से शुरू हुई? उन्हीं से जाके पूछो कि किसने की थी। उन्हें पता है उन्होंने क्या किया? मैं हैरान हूँ कि आप में से किसी को नहीं पता कि आप लोगों ने क्या कर दिया है। हमें नहीं पता। उन्होंने फील्ड ने कुछ अरसे पहले किसी वजह से हमारे साथ बहुत सी नाइंसाफी की। ओके, लेकिन इस मसले का कोई हल भी तो होगा ना। कोई तो मुश्तरका बात होगी जिन पर ये इत्तेफाक कर सके। जब ये लड़ाई नहीं करते तो क्या करते हैं? यही के लड़ाई के लिए तैयारी। आपको इस लड़ाई से आखिर क्या मिलेगा? इस लड़ाई में हमें जीत के खुशी मिलेगी। किस जीत की खुशी आखिर? लड़ाई में जीत की, ये साबित करने के लिए हम ही बेस्ट हैं। बेहतरीन किस चीज में? जंग में। क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता? दोनों पार्टीज में मुश्तरका चीज ये है कि वो दोनों लड़ाई जीतना चाहती हैं और इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। इसे खत्म कैसे करूं जब तक ये मालूम ना हो कि शुरू कैसे हुई? ओह, शायद किसी के सिर्फ सॉरी बोलने की देर हो। That's a good idea. फ्रेंडशिप सोल्यूशन नंबर 48। बात बन जाएगी अब। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मान गई। ये केक यकीनन आप दोनों पार्टीज में बहुत बेहतरी ला सकता है और नाराजगी खत्म हो सकती है। वैसे मेरी किस बात ने आपका ज़हन तब्दील किया? वो बात जब मैंने कहा कि दोस्ती के फायदे लड़ाई के नुकसान को कम कर देते हैं, या फिर वो बात कि माफ कर देने में ही असली जीत और खुशी है? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। वेट, क्या आप मुझे सुन भी रही हैं? मैं कहता हूँ वहीं पर रुक जाओ। मुझे तुम लोगों से बात करनी है। फील्ड अलर्ट, कैनन्स तैयार करो। हम माफी मांगने के लिए केक लाए हैं। क्या तुम हमारे लिए केक लाई हो? ये तो मुझे मजेदार लग रहा है। इसे दोस्ती की इब्तिदा समझो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। इतना अरसा हो गया है मुझे केक खाए हुए। गेट खोल दो। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत केक है। ये सिर्फ एक केक नहीं है दोस्तों, ये दुश्मनी के तवील रास्ते पर माफ करने का पहला कदम है। कुछ ना कहो, सिर्फ दोस्त बन जाओ। और यही बात ये केक कह रहा है कि दोस्ती कर लो। मैंने केक के टॉप पे ऐसा ही लिखा था। ये हमारी जीत के लिए। मिकोट्स, जल्दी से तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। निशाना लगाओ, हमला। अफसोस हुआ मुझे, तुमने अच्छा नहीं किया हम सबके साथ। हाँ। रुको, क्या तुमने वाकई माफी मांगने का कहा था? लेकिन हम उससे माफी क्यों मांगे जबकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं? एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुमने तो बहुत गलतियाँ की हैं। उतनी गलतियाँ नहीं की जितनी तुमने की हैं। नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्यों किया तुमने? तुम लोग आराम से बात कर लो प्लीज। I mean, एक साथ बोलोगे तो क्या समझ आएगी? ट्वाइलाइट, हमें वापस चलना चाहिए शायद। तुम भी तो बहुत थक गई हो ना, तो इसीलिए। और तुम्हारे बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। मुझे नहीं पता कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। जब भी मैं कुछ ठीक करती हूँ तो दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरे नन्हे दोस्तों, अब सब ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो। ये क्या था? ओ बेचारों, तुम लोगों के लिए तो यहाँ खाना भी नहीं है और सर्दी भी हो गई है। मैं तुम सबको अपने घर ले जाऊंगी और गरम गरम खाना दूंगी और साथ में बैठ के बुक्स पढ़ेंगे। मुझे नहीं मालूम, ये तो पूरे इक्वेस्ट्रिया की सबसे खूबसूरत वादी थी। इसे हुआ क्या?
क्या कहा? ओह, क्या? ट्वाइलाइट, हमें वजह पता चल गई है। क्या? रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सब लोग फ्रीज हो जाए, फ्रीज हो जाए, फ्रीज हो जाए। फ्लटरशाई, इन्हें जरूर बताओ कि 6 पोनियों को फ्रीज करने की निस्बत इन सबको फ्रीज करना कितना मुश्किल है। इससे पहले कि तुम लोग लड़ते रहो, तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। बहुत पहले 2 बेहतरीन दोस्त थे, ग्रैब हुपफील्ड और पाइल्स मैककॉल्ट। जब उन्होंने धुएं वाली पहाड़ियों में एक वादी देखी तो उन्हें पता था ये कोई खास जगह है। फिर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो दोनों मिलकर यहाँ रहने वालों के लिए इस वादी को महफूज और हसीन बनाएंगे। लेकिन इस बात पर इख्तिलाफ हो गया कि ये कैसे किया जाए। ग्रब का ख्याल था कि फसलें बोई जाएं ताकि हर पोनी को खाने के लिए कुछ मिल सके, लेकिन पाइल्स ने सोचा कि पहले घर बनाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी और बारिश से महफूज रखा जा सके। दोनों दोस्तों में इस बात पर इत्तेफाक न हो सका, तो पाइल्स ने खुद ही इस तरह घर बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी जगह जहां ग्रब ने फसलें बोने का सोचा। ग्रब को गुस्सा आया तो उसने पाइल्स का घर तोड़ डाला ताकि वहां फसल उगा सके। इस तरह उनकी लड़ाई शुरू हुई और फिर बढ़ती चली गई। मुसलसल लड़ाई की वजह से वादी तबाह होकर रह गई और फिर हुपफील्ड और मैककॉल्ट अलहदा-अलहदा पहाड़ियों पर चले गए। इसके बाद भी वादी और इसमें रहने वाले जानवर उनकी गोलाबारी से मुतासिर होते रहे हैं। तो फिर देखा, लड़ाई करने से यहाँ वही चीज तबाह हो रही है जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पर आए थे। अभी भी वक्त है, आपस के इख्तिलाफात भुला दो और दोस्ती कर लो। अगर अपने लिए नहीं तो इन खूबसूरत नन्हे मुन्नों के लिए सोच लीजिए। ओह, अफसोस, हमारा मकसद